good morning and thank you for joining us here on Rajya Sabha TV, where we continue to track the coverage, in fact, of Dr. Kalam's last journey. We'll be getting you all details from Rameshwaram in just a bit, but before that, let's quickly take you through the headlines. Yaqub Memon hanged in the Nagpur Central Prison, the first execution in the 1993 Mumbai serial blasts. It's an unprecedented hearing by the Supreme Court after a 90-minute-long sitting. Apex Court's three-judge bench rejects Yaqub's plea on the stay of execution, says the stay on the hanging will be a travesty of justice. Former President APJ Abdul Kalam to be laid to rest in his hometown in Tamil Nadu in Rameshwaram at 11 a.m. today. Prime Minister among several dignitaries to be present at the state funeral. And Parliament to meet after two-day recess to condole the passing away of former President APJ Abdul Kalam. Lok Sabha Speaker to convene an all-party meet to resolve the deadlock. Those are the headlines we're tracking this morning, but our continuous focus remains on Kalam's last journey. The mortal remains of the former president were flown to his hometown in Rameshwaram, Tamil Nadu yesterday. Thousands of people had lined up to pay tribute through the day, through the night as well. And several leaders, including Prime Minister Narendra Modi, will be attending the state funeral to take place in just about an hour from now. An Air Force helicopter had carried the remains of the former president to Rameshwaram yesterday. Clad in the national colours, his casket is now at his hometown for people to pay their last respects. And through the day yesterday, we saw not just a steady stream of people, but also a lot of dignitaries, a lot of politicians who also, as you can see on your screens, coming in and, of course, paying their last respects as well. Several people, including leaders from Tamil Nadu, had queued up in Rameshwaram to catch a last glimpse of the missile man, the people's president, as we know very fondly, Dr. Kalam. The security, of course, is high in the small town of Tamil Nadu ahead of the state funeral that is to take place in an hour's time from now. We're going to be tracking developments with our correspondent Vishal Dahiya, who is, of course, there in Rameshwaram, and he's been getting us constant updates from there, and we'll try and patch through him and try and get a sense of what eventually is happening at the moment. जी हाँ, तो फिलहाल आज के दिन काफ़ी बड़ा दिन है ख़बरों की दुनिया में, और जिस तरह से अभी ट्रेसी आपको बता रही थी कि पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब की जो हैं वो अंतिम संस्कार की तैयारियां अब फ़िलहाल चल रही हैं। और फिलहाल आप देख रहे हैं तस्वीरें। विशाल दहिया हमारे संवाददाता रामेश्वरम से हमारे साथ फ़ोन लाइन पर फ़िलहाल मौजूद हैं। विशाल, क्या कुछ आप बता सकते हैं हमें? जी हाँ, तो फिलहाल ये तस्वीरें आप ही देख रहे हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अंतिम संस्कार, उनकी अंतिम यात्रा, ये फिलहाल ये तस्वीरें देख रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से लोगों का तांता लगा हुआ है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का आज 11 बजे रामेश्वरम के पेकारुम्बू में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। उसी की तैयारियाँ आप देख रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई मुख्यमंत्री और अलग अलग क्षेत्र की हस्तियाँ इस मौके पर मौजूद रहेंगे। रामेश्वरम में कल हज़ारों लोगों ने नम आँखों से अपने नेता के आखिरी दर्शन किए, और हमने देखा किस तरह से लोग लगातार क्यू बनाकर मौजूद थे वहाँ पर, उनको सिर्फ आखिरी बार देखने के लिए, APJ अब्दुल कलाम को अंतिम विदाई देने। देश के कोने कोने से लोग पहुँच रहे हैं, बड़ी तादाद में छात्र भी हैं। विशाल दया एक बार हमारे साथ जुड़ गए हैं रामेश्वरम से, आइए सीधे उनके पास चलते हैं। विशाल, हम देख रहे थे तस्वीरें उन तैयारियों की जब आखिरी बार लोग देख लेना चाहते हैं अपने प्रिय नेता को, साइंटिस्ट को, एक ऐसे व्यक्ति को जिसने उन्हें इंस्पायर किया। अभी फिलहाल क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? जी आरफत, अंतिम यात्रा डॉक्टर कलाम साहब की शुरू हो चुकी है। जो उनका पार्थिव शरीर है वो उनका जो पैतृक जो घर है रामेश्वरम शहर में, वहां से अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है। पूरे जिसे कहा जाए सैनिक सम्मान के साथ अंतिम यात्रा चल रही है, और लगभग जहां ये फाइनल रेस्टिंग ग्राउंड जो है लगभग 5 किलोमीटर का रास्ता है, और
हमें जो जानकारी मिल रही है इस वक्त यहाँ मौजूद है जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स हैं, उनसे जो बातचीत हो रही है उनसे उनके मुताबिक लगभग अगले 30 से 40 मिनट में डॉक्टर कलाम का पार्थिव शरीर यहाँ पहुंचेगा और वही समय होगा जब प्रधानमंत्री और बाकी जो डिग्निटरीज अब यहाँ पहुंच रहे हैं उनके भी यहाँ पहुंचने का वही समय है। लगभग 11 बजे का समय तय किया गया है जब डॉक्टर कलाम को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। काफी जैसे कहा जाए कि सोलम मूड है यहाँ पे, बहुत ही एक शांति थोड़ी सी जिस तरह की कहा जाए देखने को मिल रही है यहाँ पर इस मैदान में जहाँ उनका पार्थिव शरीर लाया जाएगा। सिर्फ जिसे कहा एक बैकग्राउंड में जो एक म्यूजिक चल रहा है, जो संगीत बज रहा है, उसकी आवाज है। कुछ सिक्योरिटी पर्सनल जो हैं उनका जो चहलकदमी है वो सुनाई दे रही है, लेकिन ये इसलिए नहीं है कि यहाँ पर संख्या कम है लोगों की। संख्या की अगर बात करें तो बहुत जबरदस्त भीड़ यहाँ उमड़ी हुई है। दो किनारे जो इस मैदान के हैं वो पूरी तरह से उन दो किनारों पर जहां तक नजर जा रही है वहां तक केवल सिर्फ और सिर्फ इंसानी सर दिखाई दे रहे हैं। लोग बैठे हुए हैं, उनके पीछे खड़े हुए हैं, जिसको जहां जगह मिली है वो उस जगह से एक आखिरी से कहा जाए सलाम डॉक्टर कलाम करना चाहता है। और बाकी जो दूसरे दो किनारे हैं उनको सिक्योरिटी के मद्देनजर, सिक्योरिटी के लिहाज से, सुरक्षा इंतजाम के लिहाज से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, सैनिटाइज कर दिया गया है। तो अगले आधे घंटे से 40 मिनट के अंदर ऐसी उम्मीद है कि डॉक्टर कलाम का जो पार्थिव शरीर है वो प्रोसेशन में चलकर यहाँ आएगा और जब फाइनल रेस्टिंग यानी कि सुपुर्दे खाक की बारी आएगी तो फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ, पूरे सैनिक सम्मान के साथ ये पूरी कार्रवाई की जाएगी। 21 तोपों की सलामी दी जाएगी भूतपूर्व राष्ट्रपति को और खुद प्रधानमंत्री और कई और वरिष्ठ नेता जिनमें मुख्यमंत्री कई राज्यों के और गवर्नर्स। बिल्कुल विशाल, और जब आप हमसे ये बातचीत कर रहे हैं उसी दौरान जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं वो बिल्कुल ताज़ा तस्वीरें हैं। जहां से आप बातचीत कर रहे हैं वहीं की तस्वीरें फिलहाल देख सकते हैं। जाहिर है इसकी क्वालिटी तस्वीरों की फ़िलहाल उतनी बेहतर नहीं है क्योंकि सीधे जो प्रसारण देख रहे हैं तस्वीरों का। और विशाल, ये भी जिक्र हो रहा था इस बात का कि एपीजे कलाम का परिवार भी जो है, जो उनकी इमीडिएट फैमिली है, उनमें भी बहुत कम लोग हैं। कितने लोग जो हैं वो उनकी फैमिली से फ़िलहाल मौजूद रहेंगे? और इसके अलावा जो नेतागण हैं उनमें प्रधानमंत्री का नाम सामने आया है, आपने मुख्यमंत्रियों का जिक्र किया, इसके अलावा सुनने में ये भी आया है कि राहुल गांधी भी वहाँ जाएंगे। जी बिल्कुल, जहां तक कलाम साहब के परिवार की बात है तो परिवार के कई सदस्य यहाँ मौजूद हैं। उनके बड़े भाई हैं जिनकी उम्र लगभग 98 साल के आसपास है, वो घर पर मौजूद थे आज सुबह। और उसके अलावा उनके बाकी जो करीबी रिश्तेदार हैं वो भी वहाँ मौजूद हैं। कलाम साहब के जो बचपन के दोस्त रहे हैं उनमें से कल एक महिला से हमारी बात हुई। उनकी उम्र लगभग 85 से 90 साल के आसपास रही होगी और वो भी कलाम साहब को जिस लिहाज में, जिस अंदाज में याद कर रही थी उससे साफ जाहिर हो रहा था कि जो व्यक्तित्व उनका हम लोगों को एक कहा जाए कि राष्ट्रपति बनने के बाद या फिर भारत का जो मिसाइल कार्यक्रम था उसकी अध्यक्षता जब उन्होंने की, उस वक्त जो उनका व्यक्तित्व देखने को मिला, सरल, सीधा, हंसमुख और इस बात को तस्दीक करने वाला कि क्या किस तरीके से जो काम हाथ में लिया गया है उसको अंजाम दिया जाए, कुछ उसी तरह की यादें उन बुजुर्ग महिला के पास भी थी। वो लोग जिनके साथ बचपन में कलाम साहब रामेश्वरम की सड़कों पे, गलियों पे खेले थे, तो एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो व्यक्तित्व था, उनका जो चरित्र था, वो बचपन से लेकर और जब वो राष्ट्रपति बने तब तक या उसके बाद भी, जब राष्ट्रपति पद त्यागने के बाद 2007 के बाद जब उन्होंने घूम कर अलग अलग जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें लेक्चर्स दिए, युवाओं को प्रेरित करने की कोशिश की, जो प्रेरणा है वो साफ दिखाई देती है। यहाँ लोगों में थोड़ी हलचल यहाँ दिखाई दे रही है। शायद प्रोसेशन के बारे में ऐसी उम्मीद है आरपा के जो फाइनल प्रोसेशन जो चला है डॉक्टर कलाम के घर से, उसके बारे में शायद यहाँ जो लोग बैठे हैं उनको किसी तरीके की जानकारी मिली है। नारे थोड़े से सुनने को मिल रहे हैं, डॉक्टर कलाम जिंदाबाद कर के नारे सुनाई दे रहे हैं, आवाजें लोग लगा रहे हैं।
तो एक एक जो माहौल है यहाँ पर वो साफ तौर पर ये दर्शाता है कि कितना प्यार यहाँ के लोगों बड़ा है डॉक्टर कलाम के लिए। और जिस तरह से कल भी हम कुछ युवाओं से बातचीत कर रहे थे, यहाँ जो कुछ युवा पहुंचे हैं, जो छात्र पहुंचे हैं, न केवल वो छात्र जो कि रामेश्वरम के या आसपास के इलाकों के स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं, बल्कि दूर दराज के इलाकों से आए हैं। कोई महाराष्ट्र से आया था, कोई कर्नाटक से आया था, कोई आंध्र प्रदेश से आया था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो लोग आपस में एक दूसरे को जानते नहीं थे। केवल जब डॉक्टर कलाम के निधन की बात सामने आई तो फेसबुक के थ्रू, ट्विटर के द्वारा ये लोग एक दूसरे के संपर्क में आए और यहाँ पहुंचकर उन्होंने वॉलंटियर्स के तौर पर काम करना शुरू किया 2 दिन पहले कि यहाँ जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी कैसे मदद की जाए इस पूरे कार्यक्रम में। और बहुत बेहतरीन स्लोगन लेकर कल लोग खड़े थे। आज भी कुछ इस तरह के स्लोगन हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कल साफ लिखा हुआ था कि इफ पॉसिबल प्लीज रिटर्न। सो बेसिकली लोग अभी भी ये शायद इस बात को उम्मीद, जो युवा खास तौर पर हैं, वो शायद इस बात की गुहार लगाते दिखाई दे रहे थे कि कलाम साहब को कि अगर संभव हो सकता है तो आप एक बार फिर वापस आ जाएं। Vishal, Tracy this side, and you are of course talking about the fact that, you know, the arrangements that are in place and the amount of people who've gathered there from all walks of life, and a lot of them students, like you're pointing out. But, you know, what's very commendable is not just the law and order situation that has been, you know, with the security that has been implemented there, but also the fact that the people are observing a polite and a solemn a way of paying tribute, you know, because we do know that in instances like this, when it comes to an emotional event like this, the situation does get out of control. But, you know, what we've noticed, not just even in the capital, but also in Rameshwaram now, that there has been a steady stream of those who've come to pay the last respects, but it has been in a quiet, polite manner, and that's really a reflection of how Dr. Kalam was himself. Well, yes, you're right. Definitely, you know, the mood is very solemn out here. People are polite, quiet, and it's not only those who have you know, lived here in Rameshwaram. Even those who have come from outside. All right, Vishal, I'll just interrupt you just for a bit, because I would like to tell our viewers that this is the latest visuals that we're getting from Jaya Television, which is of Dr. Kalam's body being taken to the burial ground, I believe, and very soon the state funeral procession, the procession, of course, taking place, and very soon the last rites would be performed, being taken now to the burial ground. These are the visuals that you're getting. Vishal, please continue. You were saying. Yes, let me also tell you, Tracy, that those visuals which you're getting would be of the final procession, which is begin from Dr. Kalam's ancestral house in Rameshwaram town. That's somewhere around 5 kilometers from the final resting place where we are right now. And, you know, as per the officials, what we understand is that it'll be at least another half an hour or maybe, you know, a bit less than that before the mortal remains of the former president reaches this place, that the final resting place. All arrangements are pretty well made out here. The entire security paraphernalia, the other arrangements. And, you know, while I'm talking to you, I'm looking at, you know, in every direction. We are right now placed in the center of this particular ground. Wherever I can look, I can see, you know, faces, heads, human heads, waves, hands waving. So clearly, you know, it's a huge crowd gathered out here. And then people are still on the road, you know, trying to get near towards the burial ground, trying to say that final goodbye to their beloved leader, to you know, at least have a look at him once again before the final rites are performed. And what you're talking about earlier about you know, this entire the process being so orderly, so peaceful since last 2 days, that is a clear indication. विशाल, हमने देखा है कि किस तरह से दुनिया डॉक्टर कलाम को जानती है, देश डॉक्टर कलाम को जानता है, एक साइंटिस्ट के तौर पर, एक टीचर के तौर पर, एक राष्ट्रपति के तौर पर, एक इंस्पिरेशनल राइटर के तौर पर, जो कि युवा वर्ग को इंस्पायर करना चाहता है। और इस सवाल के दौरान ही ये फिलहाल तस्वीरें बताना चाहेंगे हम दर्शकों को कि ये फिलहाल तस्वीरें सीधे आप देख रहे हैं, जहाँ के अगर हम कुछ आवाज़ सुन सकें तो लोग पीछे से
नारे लगा रहे हैं। जाहिर है उनमें एक उदासी और ख़ासकर आखिरी बार अपने नेता को देखने की जो एक ललक होती है वो दोनों साथ में नज़र आ रहा है। मैं विशाल जिक्र कर रही थी इस बात का कि जिस तरह की रिपोर्ट्स हमने देखी हैं कि लोगों को वहाँ उनके खुद के इलाके में जहाँ वो पले बढ़े और एक ज़िंदगी की एक स्तर तक वहाँ पर रहे, वहाँ किस तरह से लोग उन्हें याद करते हैं। अभी एक कहानी में पढ़ रही थी अखबार में कि किस तरह से एक व्यक्ति जो है जो उनकी कब्र खोदने का काम जिसको मिला हुआ है, वो कह रहा था कि उसने कुछ दिनों पहले तक भी राष्ट्रपति कलाम के बारे में नहीं सुना था। तो इससे ये भी पता चलता है कि वो इलाका अपने आप में शायद उतना विकसित नहीं है और उतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। देखिए, यहाँ अगर कहा जाए कि विकास की बात की जाए तो क्योंकि रामेश्वरम एक टेम्पल टाउन है, टूरिज्म अट्रैक्शन है, बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, तो उस लिहाज से डेवलपमेंट कुछ हद तक जरूर है। जहाँ तक एजुकेशन की सुविधाओं की बात है तो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, लेकिन एक अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर आज यानी कि 21वीं सदी में सन 2015 में अगर इस इलाके का विकास उतना नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था, तो जब कलाम साहब यहाँ बचपन में पढ़ते थे, जब वो यहाँ से उन्होंने जो अपनी जीवन की यात्रा शुरू की, कितना मुश्किल उनके लिए रहा होगा आज से लगभग 75-80 साल पहले। और जिस तरीके से हम सब लोग जानते हैं कि उन्होंने बहुत जैसे कहा जाए कि कठिनाइयों से अपनी और बहुत परिश्रम के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखी, बहुत सारे काम उन्होंने किए, वो लोगों के घर अखबार भी बांटने जाते थे। तो इन सब हालात के बावजूद जो इंसान इतने ऊंचे ओहदे तक पहुंचा और इतने सादा विचार, इतने सरल व्यक्तित्व बना के रखा आखिरी समय तक, बावजूद इसके कि देश का जो सबसे बड़ा पद है, सबसे बड़ा ओहदा है, वो मिला डॉक्टर कलाम को, राष्ट्रपति के तौर पर रहे एक जाने माने। जी हाँ, तो रामेश्वरम से ताज़ा तस्वीरें विशाल हमारे दर्शक देख पा रहे हैं फिलहाल आपके जरिए, और दूसरे जो लोकल वहाँ के न्यूज़ चैनल्स हैं उनके जरिए तस्वीरें हम आप तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ठीक बात कर रहे हैं विशाल कि किस तरह से एक ऐसा इलाका जो शायद बहुत विकसित इलाकों में शामिल नहीं है, और करीब 75 साल पहले जब अपने सफ़र की शुरुआत यहाँ से APJ अब्दुल कलाम ने की होगी तो कितना मुश्किल उनके लिए रहा होगा, और शायद ये कामयाबी और भी ज़्यादा कई गुनी होकर हमारे सामने आती है कि किन हालात में उन्होंने कामयाबी जो है ये हासिल की है। और फिलहाल हमें बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही वहाँ पहुँच जाएंगे, मदुरई से रवाना हो चुके हैं रामेश्वरम के लिए, और जल्द ही तस्वीरों में वो नजर आएंगे। हम आपको खबर करेंगे इस बारे में। विशाल, हम जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से उन्होंने पूरे देश को तो इंस्पायर किया ही, नए सपने जगाए। उन्होंने कहा कि सपना ऐसा देखिए जो आपको सोने न दे। सपना वो नहीं है जो रात में आप देखते हैं, बल्कि एक ऐसा सपना जो आपको सोने न दे। किस तरह से डॉक्टर कलाम ने इस पूरे इलाके में सपने भरे, कल के लिए उम्मीदें भरी, किस तरह से लोग, युवा वर्ग उन्हें याद करता है? देखिए आरफा, उसका इस बात का अंदाजा सिर्फ इसी जो दृश्य हमको कल देखने को मिले उनसे लगाया जा सकता है कि युवा वर्ग जो है, खासतौर पे सिर्फ वो लोग नहीं जो कि स्कूल या यहाँ के कॉलेजेस में जाते हैं या आसपास के कॉलेज में जाते हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे भी, स्कूली बच्चे, 9वीं 10वीं 11वीं कक्षा के बच्चे, कल जो भीड़ उमड़ रही थी उसमें मुख्य रूप से ठीक सामने आकर जो बच्चे जो सामने थे या जो युवा वर्ग सामने था वो सबसे आगे था। और जो चेहरे पे जिसे कहा जाए कि जो भाव थे, खासतौर पे युवा वर्ग के चेहरे पर भाव, उनको देखकर साफ लग रहा था कि कुछ एक ऐसी चीज है जो शायद अब उनके हाथ से छूट गई है। कोई एक ऐसा व्यक्तित्व है शायद जिसकी कमी वो महसूस करें, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाव से ही उन लोगों ने अपनी जो इच्छाएं हैं, अपनी जो भावनाएं हैं उनको व्यक्त किया बड़े बेहतरीन तरीके से। प्लेकार्ड्स उनके हाथ में थे, स्लोगन्स उन लोगों ने लिखे हुए थे, और जैसा कि कल मैंने जो रिपोर्ट एक फाइल की थी उसमें जो साफ तौर पर दिखाई दिया कि कुछ स्लोगन थे जिनमें से एक बहुत ही बेहतरीन स्लोगन अंग्रेजी में कुछ बच्चों ने लिखा था, इसमें लिखा था कि रिटर्न इज पॉसिबल। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये जो अंग्रेजी के 3 शब्द हैं, इन 3 शब्दों से ही जो भावनाएं हैं यहाँ के युवा वर्ग की वो शायद सामने आती हैं। यानी कि वो कलाम साहब से आज भी गुहार लगा रहे हैं कि अगर संभव हो सके तो आप वापस आ जाइए। All right, Vishal, we'd like to tell our viewers that these are the latest visuals that we are getting, security arrangements in place, and of course that's because of the amount of dignitaries who would be attending the last
rites of Dr. Kalam, his final farewell, really. Of course, what we are learning is that Prime Minister Narendra Modi has left on a flight from Madurai, and it would just take a few minutes, really, for him to be landing in Rameshwaram in a short while from now at the helipad there. As you can already see, there are a lot of dignitaries who've already lined up there, already seated, and they would the procedure, of course, would be that the procession would eventually, which is of course on at the moment, and we were looking at the visuals of that. The body would be brought to the ground, to the burial ground, after which, of course, the state funeral would take place. Prime Minister Modi to be arriving there very shortly. Vishal, if you could just talk us through the amount of dignitaries who would be attending. We do understand that Tamil Nadu Chief Minister Jayalalitha, though, is skipping this funeral. Yes, the state chief minister, that's the Tamil Nadu state chief minister J. Jayalalitha, had expressed her inability yesterday itself due to health reasons. Though she has deputed at least 7 of her cabinet colleagues to represent the state government. All of them are here, in Rameshwaram. Apart from that, what we are being told is that, chief ministers from nearby states like Andhra Pradesh, and then Governor Karnataka, and then the Kerala governor, all these dignitaries would be attending the funeral. Some of them are already here. Some of them would be landing pretty soon at the helipad, which is just nearby, around 3 kilometers from here. As far as the Prime Minister is confirmed, yes, we can confirm from here on that what we are being told by the local authorities. The Prime Minister is expected in another 10 to 15 minutes to land in Rameshwaram. As soon as the Prime Minister lands, he would be also proceeding towards this particular ground, which is the final resting place. Meanwhile, the final procession of Dr. Kalam is also on the way. We understand that the of the former president should also be reaching here in the next 15-20 minutes. So it will be a convergence, and everything seems to be going on time as of now. The final timing, which was decided for the burial, was 11 a.m. And as of now, it seems that the process will begin at 11 a.m. itself. It will be done with full military honors. There will be, a 21-gun salute, which will be given to the former President Dr. Kalam. So it's just a solemn moment, very quiet out here. In between, we hear some slogans, some cheering from the crowd. But that's only when they get information from the policemen standing nearby or the local authorities that the procession is likely to reach, is about to reach. People have been waiting very patiently. It's a bit hot here, bit humid, but still, despite that fact, that has not deterred the crowd out here who's been sitting since 6:30, 7 a.m. in the morning. People are still converging, moving in, despite the fact that this entire area has been cordoned off due to security reasons. There is one gate on the west, on the eastern side rather, which is still kept open for the general public. People are being checked by the security guards. They're moving in. We can, as far as I can see, Tracy, out here, I can only see human heads, human hands, and it's a huge crowd. And what we were बिल्कुल इस वक्त और वेंकैया नायडू को हम फिलहाल देख सकते हैं तस्वीरों में, अभी देख रहे थे, और विशाल दैया हमें बता रहे हैं कि कैसे पूरा एक इंसानियत का सैलाब जो है, मानवता का सैलाब फिलहाल नज़र आ रहा है डॉक्टर कलाम को देखने के लिए। विशाल, बहुत दिलचस्प है ये देखना कि कैसे उस वक्त आज़ादी के मूवमेंट के दौरान नहीं बल्कि बाद में, उसके भी 60-70 गुजर जाने के बाद, 60-70 साल गुजर जाने के बाद, कैसे एक व्यक्ति अपने को इतना ऊंचा बना लेता है, इतने ऊंचे पायदान पे पहुंच जाता है जहां वो पहचान से ऊपर उठ जाता है, जहां वो दलीय राजनीति से ऊपर उठ जाता है, और शायद जो उनका ज़िंदगी जिस तरह की रही, जो उनका आखिरी सफ़र है, वो भी इसी बात की नुमाइंदगी करता है। जी बिल्कुल आरपा, और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि जिस तरीके का रिस्पांस है लोगों का, जिस तरह से भीड़ उमड़ी है, जो लोगों के मन में उनके लिए भाव हैं, श्रद्धा के, रिस्पेक्ट के, वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि जो उनका व्यक्तित्व था वो कितना ऊंचा था। और ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि ना वो कोई राजनेता थे, ना ही वो कोई फिल्म स्टार थे, कोई सिने स्टार नहीं थे। एक बहुत ही सरल सीधे वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो काम, जिस बीड़ा उठाया उसे पूरा किया। भारत के मिसाइल मैन के तौर पर जाने गए, और उसके बाद अपनी जो अचीवमेंट्स थी जीवन में, उन अचीवमेंट्स के
बल पर जो सबसे ऊंचा ओहदा इस देश में हो सकता है किसी के लिए, यानी कि भारत के राष्ट्रपति पद का ओहदा उनको मिला। और वो 5 साल भी उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से राष्ट्रपति भवन में बिताए। एक छोटा सा वाकया है जो अभी यहाँ किसी ने हमें बताया था, जो परिवार से संबंधित लोग हैं कलाम साहब के, वो ये कि जब वो राष्ट्रपति थे कलाम साहब, तो एक बार जब उनका परिवार मिलने के लिए आया, 2 दिन के लिए वहाँ राष्ट्रपति भवन रहा, और जब परिवार उनका वापस गया वहां से, तो कलाम साहब ने राष्ट्रपति भवन के जो फाइनेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट है उनको बिल तैयार करने को कहा। जो खर्चा उनके परिवार पर हुआ उस खर्चे का ब्यौरा मांगा और वो खर्चा उन्होंने अपनी जेब से दिया। तो ये जो सादगी है, जो सरलता है जीवन में, वो एक ऐसी चीज है जो कि शायद लगता है कि यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं उनके मन को छू रही है। इसीलिए ये जो माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है और जो सैलाब जो उमड़ा हुआ है और जिस तरीके के जो भाव हैं रिस्पेक्ट के, श्रद्धा के, उन सब के पीछे शायद उनका जीवन का जो नेचर रहा, जो सरल और सादा जीवन उन्होंने बिताया, और जिस तरह की प्रेरणा उन्होंने दी, जिस तरह की कोट्स उन्होंने दिए, जो आपने कहा कि सपने अगर सिर्फ देखने से पूरे नहीं होंगे, सपनों को जीना पड़ेगा, तो उस तरह विशाल दहिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, और ये चर्चा तो हम जारी रखेंगे। और ट्रेसी, ये भी इस बात की गवाही देता है कि किस तरह से डॉक्टर कलाम जैसा व्यक्ति एक छोटा सा लड़का, एक छोटे जगह से, बहुत अविकसित जगह से उभर कर देश का राष्ट्रपति बनता है। और इसी बात को बार बार डॉक्टर कलाम ने कहा कि जो अवसर हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो बराबर मिलनी चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ पैदा हुए। उम्मीद हम ये कर सकते हैं एक देश के तौर पर हम बराबर के मौके सबको उपलब्ध कराएंगे। Absolutely, that is the one lesson, in fact, that everyone is imbibing upon, especially with the youth now really being a active participant. Even today at his funeral, a lot of them volunteering as well to make the situation under control there. That in itself is a reflection really on the teachings of Kalam. We'll continue tracking developments here, of course, from Rameshwaram, but we need to slip into a very quick break. We'll be back with more in just a bit. Do stay with us.